زندہ میں دہشت گردوں نے آئل گیس کمپنی کے کیمپ پر حملہ کر کے ڈیوٹی پر مامور 2 پولیس اہلکاروں کو شہید اور 3 کو زخمی کر دیا۔ شہید اہلکاروں میں رحمت الہی اور محمد عارف شامل ہیں، جبکہ زخمی اہلکاروں میں ASI عالم شیر، فضل الرحمان اور عطاء الرحمان بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق حملہ الحاج آئل اینڈ گیس پرائیویٹ ڈرلنگ کمپنی پر ہوا ہے۔ زخمیوں کو DHQ ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے دہشت گردی کی نرسریوں کو تباہ کر کے ہی مکمل امن بحال ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ ایک بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے والے مجرمان ناقابل معافی ہیں۔ مصری حکام کی جانب سے غیر ملکی شہریوں اور زخمی فلسطینیوں کے انخلاء کے لیے رفح بارڈر کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق رفح بارڈر سے اب تک 90 سے زائد فلسطینی زخمیوں کو مصر منتقل کیا جا چکا ہے، جبکہ مصری حکام کا کہنا ہے غزہ سے آج تیمارداروں سمیت 13 زخمی رفح کراسنگ سے مصر آئے ہیں۔ ایمبولینس پر اسرائیلی حملے کے بعد رفح کراسنگ کو بند کر دیا گیا تھا۔ عرب میڈیا نے بتایا ہے کہ غزہ کے 33 میں سے 16 ہسپتال اسرائیلی بمباری کے باعث بند ہو چکے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کہا ہے اقوام متحدہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیبیٹنگ کلب ہے جو انسانی حقوق کے نفاذ اور شہریوں کی حفاظت سے قاصر ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر بربریت کے 1 ماہ کو مکمل ہونے پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام جاری بھی کیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اسرائیل کی جانب سے معصوم فلسطینیوں کا قتل عام شروع ہوئے آج 1 ماہ مکمل ہو رہا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتے ہیں۔ اپنے بیان میں چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع پر چین کا موقف ہمیشہ سے مستقل اور واضح ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹریس کا کہنا ہے کہ غزہ بچوں کا قبرستان بن رہا ہے، ہر روز سینکڑوں بچے بچیاں مارے جا رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں صرف 4 ہفتوں میں اتنے صحافی مارے گئے جتنے 3 دہائیوں کے کسی تنازع میں بھی نہیں مرے۔ انطونیو گوٹریس نے کہا کہ اقوام متحدہ کے امدادی کارکن بھی اتنے زیادہ کسی اور تنازع میں نہیں مارے گئے ہیں۔ لاہور کی احتساب عدالت نے آشیانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر کی بریت کی درخواستوں پر مزید معاونت مانگ لی۔ احتساب عدالت میں شہباز شریف اور دیگر کے خلاف آشیانہ ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ نے احتساب عدالتوں کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک رکھا ہے۔ ملزمان کے وکیل نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کی کاپی پیش کر دیتے ہیں، اس سے معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف کی دعوت پر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں MQM کا وفد لاہور پہنچ گیا، جو سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کرے گا۔ وفد میں سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار بھی شامل ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، شہباز شریف، رانا ثناءاللہ اور دیگر رہنما پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن پہنچ چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اجلاس میں بلایا نہیں گیا۔
میں نے شہباز شریف کو خود کہہ دیا تھا کہ مجھے پارٹی امور سے علیحدہ رکھیں۔ نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا، میں نے پہلے سے کہا تھا کہ پارٹی میں اگلی نسل آئے گی تو وہ عہدیدار نہیں رہیں گے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ مسلم لیگ نون میں موجود ہوں مگر نئے الیکشن میں حصہ لینے کا قائل نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حلقے کے عوام کا مجھ پر بہت دباؤ ہے کہ الیکشن لڑوں۔ اے این ایف نے گوادر میں کارروائی کرتے ہوئے پہاڑی سرنگوں میں چھپائی گئی تقریباً 1800 کلو منشیات پکڑ لی۔ برآمد کی گئی منشیات میں 28 کلو آئس بھی شامل ہے۔ افغانستان میں تیار کی گئی منشیات کو پہاڑوں کے درمیان سرنگوں، لکڑیوں اور پتوں سے بنائی گئی جھونپڑیوں میں چھپایا گیا تھا۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق منشیات برآمد کرنے کے بعد ذخیرہ کرنے والی جگہوں کو جلا دیا گیا ہے۔ امریکی ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج کاروبار کے آغاز میں ہی انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 21 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 286 روپے 50 پیسے کا ہو گیا ہے۔ اور پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 54,000 پوائنٹس کی حد کو عبور کر گیا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز کاروبار کے آغاز پر پاکستان سٹاک مارکیٹ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں علینا مظفر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں، آپ کو بتائیں کہ تحصیل درازاندہ میں دہشت گردوں نے آئل گیس کمپنی کے کیمپ پر حملہ کر کے ڈیوٹی پر مامور 2 پولیس اہلکاروں کو شہید اور 3 کو زخمی کر دیا ہے۔ شہید اہلکاروں میں رحمت الہی اور محمد عارف شامل ہیں، جبکہ زخمی اہلکاروں میں اے ایس آئی عالم شیر، فضل الرحمان اور عطاء الرحمان شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق حملہ الحاج آئل اینڈ گیس پرائیویٹ ڈرلنگ کمپنی پر ہوا۔ زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جن میں سے ایک اہلکار کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس نے مزید بتایا کہ کمپنی کیمپ پر پولیس کی نفری تعینات تھی، جس کو نشانہ بنایا گیا۔ موقع پر مزید پولیس نفری بھی پہنچ گئی ہے، جبکہ دہشت گردوں کی تلاش بھی جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی نرسریوں کو تباہ کر کے ہی مکمل امن بحال ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ ایک بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والے مجرم ناقابل معافی ہیں۔ مصری حکام کی جانب سے غیر ملکی شہریوں اور زخمی فلسطینیوں کے انخلاء کے لیے رفح بارڈر کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق رفح بارڈر سے اب تک 90 سے زائد فلسطینی زخمیوں کو مصر منتقل کیا جا چکا ہے، جبکہ مصری حکام کا کہنا ہے کہ غزہ سے استعمادداروں سمیت 13 زخمی رفح کراسنگ سے مصر آئے ہیں۔ ایمبولینس پر اسرائیلی حملے کے بعد رفح کراسنگ کو بند کر دیا گیا تھا۔ عرب میڈیا نے بتایا ہے غزہ کے 33 میں سے 16 ہسپتال اسرائیلی بمباری کے باعث بند ہو چکے ہیں، جبکہ باقی ہسپتالوں پر بھی شدید دباؤ ہے۔ ایندھن کی شدید قلت کے باعث ہسپتالوں میں انکیوبیٹرز اور دیگر طبی آلات چلانا مشکل ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ہسپتالوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سہوانی فضائیہ غزہ میں موجود
پانی کے کنووں اور بیکریوں کو بھی چن چن کر نشانہ بنا رہی ہے تاکہ غزہ کے باسیوں کی زندگی مزید اجیرن ہو جائے اور وہ علاقے کو خالی کر دیں۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیبیٹنگ کلب ہے جو انسانی حقوق کے نفاذ اور شہریوں کی حفاظت سے قاصر بھی ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر بربریت کے 1 ماہ کو مکمل ہونے پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام جاری کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اسرائیل کی جانب سے معصوم فلسطینیوں کا قتل عام شروع ہوئے آج 1 ماہ مکمل ہو رہا ہے۔ دنیا انسانیت کے امتحان میں ناکام ہو چکی۔ شہباز شریف نے کہا ہے مسلم دنیا کو آگے بڑھنے کے لیے گہرائی سے خود کا جامع جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں مزید لکھا ہے کہ عالمی نظام اس طرح کی ناانصافی کی موجودگی میں اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتے ہیں۔ اپنے بیان میں چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع پر چین کا موقف ہمیشہ سے مستقل اور واضح ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ تنازع کے حل کے لیے چین بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹریس کا کہنا ہے کہ غزہ بچوں کا قبرستان بن رہا ہے۔ ہر روز سینکڑوں بچے بچیاں مارے جا رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں صرف 4 ہفتوں میں اتنے صحافی مارے گئے جتنے 3 دہائیوں کے کسی تنازع میں بھی نہیں مارے گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹریس کا کہنا ہے کہ غزہ بچوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ ہر روز سینکڑوں بچے بچیاں مارے جا رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں صرف 4 ہفتوں میں اتنے صحافی مارے گئے جتنے 3 دہائیوں کے کسی تنازع میں بھی نہیں مارے گئے۔ انطونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے امدادی کارکن بھی اتنے زیادہ کسی اور تنازع میں نہیں مارے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف رفح کراسنگ کا راستہ غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ انطونیو گوٹریس کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں دیگر امداد کے ساتھ ایندھن کی فراہمی بھی کی جائے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے آشیانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر کی بریت کی درخواستوں پر مزید معاونت مانگ لی ہے۔ احتساب عدالت میں شہباز شریف اور دیگر کے خلاف آشیانہ ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ نے احتساب عدالتوں کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک رکھا ہے۔ ملزمان کے وکیل نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کی کاپی پیش کر دیتے ہیں، اس سے معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ نیب کے وکیل نے کہا کہ یہ کیس میرٹ پر سنا گیا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کیس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ احتساب عدالت کے جج نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے حکم کے پابند ہیں۔ عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی کاپی پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ شہباز شریف سمیت دیگر کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ آج سنایا جانا تھا۔ احتساب عدالت نے شہباز شریف سمیت دیگر کی درخواستوں پر 1 نومبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف کی دعوت پر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ایم کیو ایم کا وفد لاہور پہنچ گیا، جو سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ وفد میں سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار بھی شامل ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور دیگر رہنما پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن پہنچ چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پارٹی رہنماؤں نے ایم کیو ایم کے وفد کا استقبال کیا ہے۔ ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز، خواجہ سعد رفیق اور پرویز رشید بھی شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کا وفد نواز شریف سے ملاقات کرے گا۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور عام انتخابات میں اتحاد کے حوالے سے گفتگو بھی ہوگی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اجلاس میں بلایا نہیں گیا۔ میں نے شہباز شریف کو خود کہہ دیا تھا کہ مجھے پارٹی امور سے علیحدہ رکھیں۔
निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मैंने पहले से कहा था कि पार्टी में अगली नस्ल आएगी तो वो ओहदेदार नहीं रहेंगे। साबिक वजीर आजम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून में मौजूद हूँ मगर नए इलेक्शन में हिस्सा लेने का कायल नहीं। उनका कहना था कि हल्के के अवाम मुझ पर बोझ डालते हैं कि इलेक्शन लड़ू, इलेक्शन से मसाइल हल नहीं होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मसाइल हल करने के लिए तमाम जमातों को आपस में बैठना होगा। जो लोग जेल में हैं, चाहे उन्हें मकबूलियत हासिल है या नहीं, उन्हें सियासत को एक तरफ रखना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था कि सब जमातों को मौका मिल चुका है लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तरक्याती मंसूबों पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत कर दी है। निगरान वजीर आला पंजाब ने अली सुबह खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा किया। मंसूबे पर जारी तामीराती कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने अंडरपास की अंदरूनी दीवारों के तामीराती कामों का मुआयना भी किया है। कमिश्नर व DG LDA मोहम्मद अली रंधावा, चीफ इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के बारे में वजीर आला को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि अंडरपास की अंदरूनी दीवारों के काम को आइंदा चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। अंडरपास की अंदरूनी सड़क पर तामीराती काम दिन रात जारी हैं। वजीर आला पंजाब ने मंसूबे पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत करते हुए कहा कि खालिद बट चौक अंडरपास को इसी माह के वस्त तक मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी ने मंसूबे के इतराफ ग्रीन बेल्ट पर शजरकारी और लैंडस्केपिंग के लिए DGPHA को भी हिदायत दी है। मोहसिन नकवी का कहना था कि खालिद बट चौक अंडरपास को जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ANF ने गवादर में कार्रवाई करते हुए पहाड़ी सुरंगों में छुपाई गई तकरीबन 1800 किलो मुनशियात पकड़ ली। बरामद की गई मुनशियात में 28 किलो आइस भी शामिल है। अफगानिस्तान में तैयार की गई मुनशियात को पहाड़ों के दरमियान सुरंगों, लकड़ियों और पत्तों से बनाई गई झोंपड़ी में छुपाया गया था। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुनशियात बरामद करने के बाद जखीरा करने वाली जगहों को जला दिया गया। मुनशियात बैरून मुल्क स्मगल करने के लिए जखीरा की गई थी। तर्जुमान के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का आगाज हो गया है। कोटअदू में मुसाफिर बस ने बेकाबू होकर गधा रेडी पर सवार मजदूरों को कुचल दिया, जिससे 5 अफराद मौके पर ही जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया टिब्बी मोची वाली सनानवा के नजदीक पेश आया। गधा रेडी पर सवार अफराद कोटअदू से सनानवा मजदूरी के लिए जाते हुए मुसाफिर बस की जद में आए। तेज रफ्तार मुसाफिर बस रावलपिंडी से राजनपुर जा रही थी। रेस्क्यू के अमले ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद, जबकि जांबाक अफराद की लाशों को डेड शीट से ढांप दिया गया। अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला आज भी जारी है। आज कारोबार के आगाज में ही इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.21 महंगा होने के बाद 286 रुपए 50 पैसे का हो गया है। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 29 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 54,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 407 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है, जिसके साथ 100 इंडेक्स 54,267 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहे हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 737 पॉइंट्स इजाफे से 53,860 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। खबरें और भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आपको बताएं कि गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों को दी जाने वाली डेडलाइन गुजर जाने के बाद भी
غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان باشندوں کا محفوظ انخلا اور باعزت طور پر اپنے وطن واپسی حکومت پاکستان کی اولین ترجیح۔ روزانہ ہزاروں غیر رجسٹرڈ افغان شہری بذریعہ تورخم اور چمن بارڈر اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں افغان باشندے تورخم اور چمن بارڈر پر موجود ہیں جو کہ باخوشی اپنے ملک واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ کے پی اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں غیر قانونی غیر ملکی افراد کے لیے ٹرانزٹ کیمپس قائم کیے گئے ہیں جن میں روزمرہ کی تمام سہولیات موجود ہیں۔ گزشتہ روز 9,816 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ واپس جانے والے 9,816 افغان شہریوں میں 3,000 مرد، 2,425 خواتین اور 4,343 بچے شامل ہیں۔ افغانستان روانگی کے لیے 632 گاڑیوں میں 1,017 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی۔ اب تک کل 1,98,554 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں راولپنڈی سے اپنے سینئر رپورٹر علی اصغر بٹی سے۔ جی علی اصغر بتائیے گا۔ جی، غیر قانونی افغانی شہریوں کا سلسلہ وطن کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم ملکوں کو ڈیپورٹ کیے جانے والے کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد غیر قانونی طریقے افغانی باشندوں کا اپنے وطن کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغانی باشندے محفوظ انخلا کے باعزت طور پر اپنے وطن حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ غیر رجسٹرڈ افغانی باشندے بذریعہ تورخم بارڈر اور چمن بارڈر کے ذریعے وطن واپس جا رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں افغانی باشندے خاص تورخم اور چمن کے بارڈر میں موجود ہیں جو کہ باحفاظت اپنے ملکوں کو جانے کے لیے تیار ہیں۔ کے پی کے اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کا ٹرانزیشن کیمپ بھی قائم کیا گیا ہے جن کی روزمرہ کی تمام سہولتیں میسر کی گئی ہیں۔ 6 نومبر کی اگر میں بات کرنا چاہوں تو 9816 افراد غیر ملکی افغانی باشندوں کو اپنے ملک میں بھیجا جا چکا ہے۔ 9896 افراد شہریوں میں سے 3038 افراد جو ہیں مرد ہیں، 2425 جو ہیں وہ خواتین ہیں، 4353 جو ہیں وہ بچے شامل ہیں۔ افغانستان کی روانگی کے لیے 632 گاڑیوں کا اہتمام کیا گیا۔ اگر میں خاندان کی بات کرنا چاہوں تو 1017 خاندان واپس جا چکے ہیں۔ اب تک جو ٹوٹل پاکستان سے افغانستان جا چکے ہیں 1,98,554 افراد غیر ملکی جو ہیں وہ اپنے وطن میں جا چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ علی اصغر بٹی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ روڈ رابری کی وارداتوں کے سلسلے میں چیلنج سمجھا جانے والا کلیم عرف کلیمی کوبرا ڈکیٹ گینگ گرفتار ہو گیا ہے۔ دوران تفتیش روڈ رابری اور موٹر سائیکل چوری کی 14 سے زائد وارداتوں کا انکشاف ہوا۔ لوٹی گئی نقدی تقریباً 4 لاکھ روپے، 4 عدد موٹر سائیکلیں اور 6 موبائل فونز بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو کی ہدایت پر ڈی ایس پی چونیا محمد سرور اوان کی رہنمائی میں ایس ایچ او تھانہ صدر چونیا عابد محمود شینا اور ان کی ٹیم نے روڈ رابری کی وارداتوں میں مطلوب بدنام زمانہ کلیم عرف کوبرا ڈکیٹ گینگ کے 3 ارکان کلیم عرف کوبرا، عارف عرف بوٹی اور معروف عرف روفا کو سرغنہ سمیت اس وقت گرفتار کر لیا جب ملزمان چونیا کے نواح میں واردات کی نیت سے گھاٹ لگائے بیٹھے تھے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے ڈکیٹ گینگ تشکیل دے رکھا تھا اور روڈ پر اسلحے کے زور پر وارداتیں کرتے تھے۔ گینگسٹر کلیم کوبرا اور عارف بوٹی عادی وارداتی ہیں اور ان کے خلاف چوری، روبری اور دیگر نوعیت کے درجن سے زائد مقدمات ضلع کے مختلف تھانوں میں بھی درج ہیں۔ اسی حوالے سے شہداد کوٹ پولیس تھانہ اے سیکشن کی حدود میں 2 دن قبل گوادر موٹر وے پر ون ویلنگ کے دوران حادثے میں 2 نوجوانوں کی ہلاکت کا معاملہ۔ نوجوان 17 سالہ شراز اور 18 سالہ حسن علی بروہی کے جاں بحق ہونے کے بارے بہت بڑا انکشاف ہوا ہے کہ ایس ایچ او نے بھاری رشوت کے عوض ون ویلنگ کروائی۔ ذرائع کے مطابق ون ویلنگ بھی پولیس چوکی کے سامنے کی گئی ہے جس میں دور سے پولیس چوکی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس افسوسناک واقعے پر ایس ایس پی کمبر شہداد کوٹ نے نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچ او
सेक्शन को मुअत्तल भी कर दिया। लेकिन हैरत की बात यह कि 2 दिन के बाद ही इसी SHO को थाने में दोबारा बहाल भी कर दिया गया, जिस पर शहरियों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई और मामले की शफाफ इंक्वायरी कराने का मुतालबा भी किया गया है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल हमीद भट्टी से। जी अब्दुल हमीद भट्टी, आगाह कीजिएगा इस मामले के बारे में। अच्छा, ये पुलिस थाना ए सेक्शन की हुदूद में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें 2 दिन कबल वन व्हीलिंग में 2 कीमती जानें जाया हो गई थी और उस वन व्हीलिंग का बहुत बड़ा इंकशाफ भी हुआ है कि पुलिस की गफलत और लापरवाही तो वैसे सामने आ गई है, मगर पुलिस की जानिब से भारी रिश्वत के एवज वन व्हीलिंग की इजाजत दी गई थी। और बहुत बड़ी बात यह भी है कि वन व्हीलिंग ग्वादर मोटरवे कुब्बो पुलिस चौकी के सामने हुई है और वीडियो में दूर से उस कुब्बो पुलिस चौकी को भी देखा जा सकता है। इस अफसोसनाक वाक़े का SSP कंबर शदादपुर ने इजहार बरमी करते हुए SHO को फिलफौर मुअत्तल कर दिया था और 2 दिन के बाद जैसे ही मामला ठंडा हुआ तो उसी SHO को उसी थाने पर बहाल कर दिया। शहरवासियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जहां पर वन व्हीलिंग की गई है उस जाए वकूफ का मुआयना करके वर्षाओं के साथ इंसाफ किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद भट्टी तफसीलात से आगाह करने के लिए। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकालने के फैसले के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के मुतालिक शहरियों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस पर कुछ लोग बैरून मुल्क बैठकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। प्रोपेगेंडा करने वालों को ये ख्याल करना चाहिए कि हम सब एक पाकिस्तान में रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि हम मुसलमान हैं। इसी तरह के प्रोपेगेंडे करने से सिर्फ इंतशार फैलेगा और कुछ नहीं। शहरियों का कहना है ये सब जो बाहर मुल्क में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सब भारतीय रॉ के एजेंट्स है। मुल्क की खारजा पॉलिसी को मुतासिर करना चाहते हैं। वीजे के बगैर कोई भी किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकता, पाकिस्तान में क्यों आने दें। और ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अफगानियों के साथ गलत कर रहे हैं, वो खुद इस वक्त बरतानिया में बैठे हैं या अमरीका में। शहरियों का कहना था ये सब जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं वो सब अपने मफाद और पैसा कमाने के लिए करते हैं। गैर मुल्की एजेंट्स पाकिस्तान में अफगानियों के हालात की झूठी खबरें फैला रहे हैं। अफगानियों ने जो दहशतगर्द तंजीमें बनाई हुई हैं इस फैसले से वो खत्म हो जाएंगी और इंतशार भी झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। करने वालों को ये ख्याल करना चाहिए कि यार हम सब एक पाकिस्तान में रहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है हम मुसलमान हैं, वो लोग भी मुसलमान हैं, तो इस तरह के प्रोपेगेंडे से इंतशार फैलेगा और तो कुछ नहीं होने वाला। जो लोग बाहर ममालिक में बैठकर फॉरेन कंट्रीज से पाकिस्तान के खिलाफ इसी इशू को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहा है वो इंडियन लॉबी है, रा और मोसाद के एजेंट है जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को नाकाम करने के लिए अपनी नाकाम हरकत सर अंजाम दे रहे हैं। वीजे के बगैर कोई दूसरा बाशिंदा किसी दूसरे ममालिक में नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ एक अरसे से हो रहे हैं। आज लोग प्रोपेगेंडा बना रहे हैं इसके हवाले से कि जी जो अफगानियों के साथ ज्यादती हो रही है, और प्रोपेगेंडा वो लोग बना रहे हैं जो इस वक्त जो है ना कोई बरतानिया में बैठा हुआ है, कोई जो अमेरिका में बैठा हुआ है और कोई फ्रांस में बैठा हुआ है। प्रोपेगेंडा जो है वो गलत कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट की हक में बोलना चाहिए। ये जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं वो सब प्रोपेगेंडा है। ये अपने पब्लिसिटी के लिए बातें करते हैं और हमेशा के लिए करते हैं, अपने पैसों के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए करता है। पीटीआई के एजेंट है वो उनकी फेवर कर रहे हैं, ये तो मतलब अपना नाम ऊंचा करने के लिए शायद, और हम यही चाहेंगे कि उनकी फेवर ये ना करे और जो पाकिस्तान का जो कानून है वो उनको निकाला है वो तो बेहतरीन अच्छी बात है। इनके हक में जो बैरून मुल्क में बैठे कुछ लोग कुछ अनासिर जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अफगान महाजिरीन के साथ ज्यादती हो रही है, वो बिल्कुल गलत है, वो किसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पीटीआई के ये जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और सी वीडियो चला रहे हैं जिसमें कि बच्चों को बांध के और एक इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है कि जो उन पे नहीं तरस खाने की बात नहीं है, उनको अपने आप मुल्क वापस जाना चाहिए। अफगान महाजरीन ने जो तंजीमें बनाई हुई हैं और जिसकी वजह से वो इंतशार फैलाते हैं, तो उससे ये होगा कि वो तंजीमें ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान में जो इंतशार फैला हुआ है वो खत्म। जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सही फैसला किया है कि ये अफगान महाजरीन यहाँ से पाकिस्तान से खाली करके निकालना हम सबका मफाद में है, और हमारा रिक्वेस्ट है कि लीग अल्ताफ में भी अगर अफगान महाजरीन है
कहीं है तो इनको भी निकालना चाहिए। जो भी हुकूमत ने उनको रेड लाइन दी थी वो अब वक्त पूरा हो गया, तो अब दुरुस्त है, ये गैर आइनी तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कि प्रोपेगेंडा की है ये हुकूमत में के खिलाफ है कि हुकूमत इन्होंने ज्यादती की है, नहीं ज्यादती नहीं की है, सही की है उन्होंने। नहीं करना चाहिए, ये तो गलत बात है, ये तो हमारे पाकिस्तान की बदनामी है। तो अब बदनामी तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने मुल्क का, क्योंकि हमने इस पे अपना जान भी देना है। हम तो पाकिस्तान के लिए हर टाइम तैयार है, पाकिस्तान के लिए तो हम हर चीज़ के लिए तैयार है, किसी का प्रोपेगेंडा हमें कबूल नहीं है इसके बारे में। सऊदी अरब में सजी सूफियाना शाम, जिसमें हजारों पाकिस्तानी वर्कर्स भी शरीक हुए, जबकि नामवर पाकिस्तानी गुलकारों ने अपनी आवाज से महसूस भी किया। इसके अलावा मारूफ पाकिस्तानी कॉमेडियन आर्टिस्टों ने भी लोगों के चेहरों पर खूब मुस्कुराहटें बखेरी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में बैंक अल हबीब की जानिब से रियाज मेट्रो कैंप में सूफियाना शाम मेहनत कशों के नाम के अनवान से शाम सजाई गई, जिसमें हजारों की तादाद में पाकिस्तानी वर्कर शरीक हुए, जबकि सफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान समेत दीगर अहम शख्सियात भी शरीक थी। इस मौके पर पाकिस्तान के नामवर गुलकारों मुल्कू और ताहिर अब्बास ने अपनी आवाज का जादू जगाया। मौसीकी के ऐसे सुर बखेरे के पाकिस्तानी वर्कर्स नाचने पर मजबूर हो गए। इसके अलावा मारूफ पाकिस्तानी कॉमेडियन आगा माजिद, सलीमुल बेला और गोगा पसरूरी ने खूब मुस्कुराहटें बखेरी, जिससे वर्कर्स खूब महसूस हुए। इस मौके पर निजी बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट डिवीजन शहरियार सफदर का कहना था, हमारा मकसद बैरून मुल्क मकीम हम वतनों को बैंकिंग सिस्टम के जरिए रकूम को पाकिस्तान भिजवाने के लिए आगाही फराहम करना है, ताकि पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो। IPG ग्रुप के CEO जवाद गुलाम रसूल का कहना था कि सऊदी अरब में मकीम लाखों वर्कर्स मुल्की सरमाया हैं, जिन्होंने हमेशा अपनों से दूर रहकर मुल्क व कौम की खिदमत का फरीजा अंजाम दिया है। सफारत खाना पाकिस्तान के हेड ऑफ चौंसरी मोहसन सैफुल्लाह ने इवेंट को सराहते हुए कहा कि सऊदी अरब में 27 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मकीम हैं, जो अपनी सलाहियतों के जरिए मुमलकत की तरक्की का बायस हैं, जबकि यही लाखों अफराद सबसे ज्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान भिजवाते हैं, जो कि काबिल तहसीन है। तकरीब के आखिर में कुरानदाजी के जरिए वर्कर्स में एयर रिटर्न टिकट भी दिया गया है। अगर महसूस कर रहा हूँ आज फिर जो है वो सऊदी अरब ने जो है वो हमें अपनी मेहरबानी का शर्फ बख्शा है, और बैक्सकैम की मेहरबानी। और आज सऊदी अरब की हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान रेमिटेंस के हवाले से सबसे बड़ा म्यूजिकल इवेंट होने जा रहा है। और इंशाल्लाह जो मैं अभी आवाम का जोशो खरोश देख के आया हूँ, 10,000 की आवाम जो है वो इंतज़ार कर रही है अपने फेवरेट सिंगर्स का, अपने प्यारों का, और जो एक भरोसे का रिश्ता जो है वो बैंक अल हबीब बनाने जा रहे हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा और आप देखेंगे कि हमने एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट जो है अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए सजाया है। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ आज हम एक ज़बरदस्त इवेंट सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। वो पाकिस्तानी भाई जो अपने घर से, अपने वतन से दूर यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने घर और पाकिस्तान की मईशत को संभालते हैं, उस ज़र मुबादला की सूरत में जो वो यहाँ रेमिटेंस के जरिए भेजते हैं। एक छोटा सा पैगाम लेके आए हैं कि लीगल चैनल्स के जरिए पाकिस्तान पैसे भिजवाइए। बहुत अच्छा लगा ये इवेंट, जितने भी लेबर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको इंटरटेन करने के लिए आए हैं। अल्लाह ने जो हमें फन दिया है, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरना, तो हम यहाँ आए हैं। और जितने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी सऊदीया में या सऊदी से बाहर जितने भी, सबके लिए हम दुआ गो हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को छोड़ के मुल्क से बाहर हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए इकॉनमी इकट्ठी करते हैं। उसके लिए बहुत सारा मामलात हैं, उनके बड़ा उनका हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े मैं समझता हूँ कि दिल गुर्दे के साथ ये सब कुछ करते हैं। इतना होता नहीं, हम लोग 2-4 दिन के लिए आते हैं और उदास हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी। चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब ने जामे मस्जिद असद फरीदिया फैसलाबाद में BISP मुलाजमीन से खिताब करते हुए कफालत वज़ाइफ की अदायगियों को बिला किसी कटौती यकीनी बनाने की हिदायत की है। डॉक्टर अमजद साकिब का कहना था, गरीबों के मसाइल और मसाइब से हमदर्दी रखने में इंसानियत मुज़मिर है। डॉक्टर मोहम्मद मस्कीन औरतों, बेवाओं, यतीमों और बच्चों की खिदमत इबादत के मुतरादिफ है। BISP का प्रोग्राम जरूरतमंद खानदानों को इजाफी इमदाद फराहम करने की अक्कासी करता है। मुलाजमीन अपने वसाइल बुरुएकार लाते हुए जरूरतमंद खवातीन को सहूलियात फराहम करें। उन्होंने कहा कि BISP मुलाजमीन जरूरतमंद खवातीन से इखलाक व हमदर्दी से पेश आएं।
BISP को मुल्क का बेहतरीन अदारा बनाना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। संबड़ियाल में फैमिली प्लानिंग के हवाले से कैंप लगा दिया गया है, जिसमें सियालकोट के DPWO के जिले सदर चौधरी सजाद अहमद ने शिरकत करके संबड़ियाल की आवाम को फैमिली प्लानिंग के हवाले से आगाही भी दी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे बाबर गुलशन वहां पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी बाबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें मौजूद हूँ सियालकोट के तहसील संबड़ियाल में। तो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सजाद अहमद, DPWO सियालकोट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये जो फैमिली प्लानिंग के हवाले से संबड़ियाल को मैसेज देने के लिए आए हैं, और ये खासकर यहाँ पे जो फलाही मरकज काम कर रहे हैं उनके बुनियादी मकासद क्या हैं, और संबड़ियाल की आवाम को वो क्या मैसेज दे रहे हैं कि किस तरीके से वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। बताइएगा कि ये जो बढ़ती खासकर महंगाई है उसमें ये जो प्लानिंग है कि जी फैमिली प्लानिंग अगर ना हुई ये तो बहुत ज्यादा ग्रोथिंग हो जाएगी सर। तो उसके लिए आपका जो अदारा है उन्होंने संबड़ियाल में जो फराही मराकज जो बनाए हैं उनके बुनियादी मकासद बता दीजिए, और दूसरा संबड़ियाल की आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो फैमिली प्लानिंग के हवाले से उन पे असरअंदाज हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं संबड़ियाल की आवाम को ये बताना चाहता हूँ, हमारे क्योंकि संबड़ियाल नई तहसील बनी है जहाँ पे हमारे 4 फलाही मराकज और 1 फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स काम कर रहा है। संबड़ियाल की आवाम के लिए हम जो फैमिली प्लानिंग की जो बेसिक ज़रूरियात है वो हम हमारे जो फलाही मराकज हैं वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। और संबड़ियाल की आवाम को ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज हमने फैमिली के ऊपर प्लानिंग ना की तो कल मुस्तकबिल में ये संबड़ियाल में ज़मीनें कम पड़ जाएंगी और महंगाई इससे ज़्यादा असरअंदाज होगी। सबसे बड़ी वजह यह कि हम एक ज़री मुल्क हैं, संबड़ियाल एक ज़री इलाका है, उसके बावजूद भी हम ज़री बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। आज का ये मैसेज मैं संबड़ियाल के अवाम को देना चाहता हूँ, एजुकेशन हेल्थ के ऊपर आप जितनी तवज्जो देंगे मुल्क के लिए उतना ही बेहतर होगा। अगर संबड़ियाल में लोगों को अवेयरनेस इसी फैमिली। एबटाबाद में 12 साल बाद अदालत का बड़ा फैसला आ गया। किराएदार से दुकान खाली करवा कर मुतल्लिका शख्स के हवाले करने का हुक्म BLF स्पेशल ब्रांच और पुलिस एहलकारों ने मिलकर अदालती अहकामात पर अमल दरामद भी करवाया। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे उबैदुर्रहमान सुलेमानी से। जी उबैद सुलेमानी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद कचहरी रोड पर हम मौजूद है, जहां अदालत के अहकामात के बाद जहां की जो दुकान है 12 साल के तवील अरसे के बाद एक फ़ैसला हुआ, जिसके बाद दुकान को खाली करवा दिया गया। बहुत सारे इदारों के अफसरान और एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मामला था और अदालत ने क्या अहकामात जारी किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जी सिविल जज फर्स्ट के पास रेंट कंट्रोलर का केस था जो 12 साल बाद जिसका फ़ैसला आया, उस फैसले की कॉपी लेके हम थाने गए, जिसमें थाना सिटी से सब इंस्पेक्टर अमजद सलार, सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ खान, स्पेशल ब्रांच से तनवीर साहब और अदालत से BLF ने आके दुकानदार को उसका अदालत का नोटिस दिखाया, जिस पे उसने भी अदारों से कोऑपरेट करते हुए इंतहाई मिलनसारी के साथ दुकान खाली कर दी। हम अपने अदारों का और इस ताजर का इंतहाई मशकूर हैं कि जिसने पुरअमन तरीके से ये सारा अमल बरोए कार लाया। जी अच्छा, ये बताइएगा कौन कौन सा स्टाफ यहाँ पर मौजूद था, कौन कौन से इदारों के एहलकार यहाँ पर मौजूद? यहाँ पे थाना सिटी पुलिस से सब इंस्पेक्टर अमजद सलार, इम्तियाज़ खान और उनके हमनवा जो नफरी थी, इसके अलावा स्पेशल ब्रांच से तनवीर साहब हैं और अदालत से BLF हैं, तकरीबन 5 से 6 उनके भी बंदे यहाँ पे मौजूद थे। इन सारों की मौजूदगी में ये सारा अमल पाए तकमील तक पहुँचा। जी बिल्कुल जी, हमारी इनसे बात हुई, उनका यही कहना था कि 12 साल के बाद ये फैसला हुआ, जिसके बाद दुकान को खाली करवा लिया गया और मालिक के हवाले कर दी गई। और खुश सखर के गुडानी फाटक पर बनाई जाने वाली सड़क 2 दिन में ही टूट फूट का शिकार होने लगी। नाकस मटीरियल के इस्तेमाल होने की वजह से सड़क में खड्डे पड़ने लगे। इंतजामिया और ठेकेदारों की कारकर्दगी खुलकर अवाम के सामने आ गई है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासिर अंसारी से। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। ये बिल्कुल गुज़िश्ता 2 साल कबल होने वाली बारिश ने जहाँ सक्कर की तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई थी और इंतजामिया की जानिब से जो सड़कें तामीर की गई थी उनकी कलई अवाम के सामने खुलकर सामने आ गई थी। जो है इंतजामिया की जानिब से 2 साल बाद टूट फूट का शिकार होने वाली सड़कों की मरम्मत का काम दोबारा शुरू कर दिया गया था, जो कि एक खुश आइंद अमल है। मगर इंतजामिया की गफलत के सबब ठेकेदार
करप्शन कर 2 नंबर सड़कें डालने में इस वक्त मसरूफ है। मैं इस वक्त सक्कर के इलाके गडानी फाटक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 रोज़ कबल एक सड़क डाली गई है जो इंतहाई जो है नाकिस मटेरियल से बनाई गई है, जिसकी निशानदेही 9 मुंतखब चेयरमैनों ने 9 मुंतखब मेयर के सामने भी की थी, जिसके बाद उसका काम तो रुकवा दिया गया था मगर टेंडर नहीं कैंसिल किया गया था। हम गडानी फाटक पर मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं कि 2 रोज़ कबल डाले जाने वाली सड़क के जो है पत्थर बाहर आना शुरू हो गए। शहरियों का यही कहना है, इलाका मकीनों का, कि अगर बरसात हो गई तो इस सड़क का क्या हाल होगा। एक दिन में सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई है और ठेकेदार की करप्शन और इंतजामिया की गली खुलकर आवाम के सामने आ गई है। शहरियों का यही कहना है कि नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने वाले ठेकेदारों और अफसरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और सक्कर में जो है मेयारी सड़कें। बीवी के बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। मेरी शादी कराओ। जैकबाबाद में 80 साला मौमिर शख्स बेटे के खिलाफ अदालत पहुंच गया। जैकबाबाद के नवाही गांव जाड़ावाह का रिहायशी 80 साला मौमिर शख्स अपने बेटे के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत पहुंच गया। 80 साला मिंठार लशारी ने मीडिया को बताया कि बीवी के बगैर अब जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। दुल्हन उम्र रसीदा ही हो लेकिन शादी जरूरी है। मौमिर शख्स का मजीद कहना था कि पूरी जिंदगी मेहनत की, बेटे को नौकरी भी लेके दी, लेकिन मेरी जिंदगी अजीरन है, कोई मदद नहीं करता। बेटे को शादी करवाने के लिए पाक किताब का वास्ता भी दिया है लेकिन इसने इनकार कर दिया। राब्ते पर एडवोकेट इब्राहिम लशारी का कहना था कि दरख्वास्त तैयार कर ली गई है, फरियादी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं था जिसके बायस दाखिल नहीं हो सकी। अड्डा जखीरा में तजावजात की भरमार। रेडी और ठेलाबानों ने रोड को चारों एतराफ से बंद कर रखा है, जिसकी वजह से आए रोज हादसात और शहरियों को आने जाने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि तजावजात के बायस पैदल चलना भी महाल हो गया है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवाज प्रिंस से। जी नवाज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त अड्डा ज़खीरा मेन चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ अड्डा ज़खीरा में नजायज़ तजावजात की भरमार है। यहाँ इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश है और यहाँ जो ट्रैफिक का जो आए रोज़ कोई ना कोई हादसात जो इसका सबब बनते हैं। यहाँ चारों तरफ से ये रेडी और ठेलों वालों ने यहाँ रोड को बिल्कुल ब्लॉक करके रखा हुआ है और जो ट्रैफिक में वो काफ़ी दुश्वारी हो रही है। यहाँ इंतज़ामिया वो बिल्कुल तमाशाई बने हुए हैं, यहाँ कोई पूछने वाला है नहीं। शहरियों का कहना है कि हम हर रोज़ जो जब बच्चों को स्कूल लेने के लिए आते हैं और छोड़ने के लिए जाते हैं, या ट्रैफिक चारों तरफ से ये रेडियो वालों ने यहाँ रोड को बिल्कुल ब्लॉक करके रखा है। यहाँ नजायज़ तजावजात करने वाले की भरमार है। यहाँ इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश हो चुकी है। उसके अलावा शहरियों को ये मुतालबा है DCO लोधरा से और असिस्टेंट कमिश्नर तहसील दुनियापुर से मोहम्मद सैफुल्लाह जवेद से भी मुतालबा करते हैं इन जो नजायज़ तजावजात से जो हमारी जान छुड़वाइए, ताकि ट्रैफिक में दुश्वारी हो रही है, ट्रैफिक रवानी में हो सके। जहाँ नजायज़ तजावजात खत्म होगी तो ट्रैफिक में रवानी की बहाल हो सके। शोरकोट में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया है। इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए SHO शोरकोट सिटी फैसल रजाक ने अपनी टीम के हमरा बस्ती वरियाम में छापा मारा तो मुजरिमान ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 3 मुलजिमान फरार होने में कामयाबी हुए। DPO मलिक तारिक महबूब के मुताबिक हलाक शख्स की शनाख्त आसिफ डब के नाम से हुई, जो डकैती और इक़दाम कत्ल समेत संगीन नौयत के 55 मुकदमात में मतलूब भी था। आपको खबर दें शोरकोट से, जहां शोरकोट में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया है। इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए SHO शोरकोट सिटी फैसल रजाक ने अपनी टीम के हमरा बस्ती वरियाम में छापा मारा तो मुजरिमान ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया है। लाहौरिये खुशी से झूम उठे हैं। कल्चरल फेस्टिवल की तकरीबात अंदरून लाहौर, शाही किला और दिल्ली दरवाजे में जारी। शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद की इस रिपोर्ट में।
बिल्कुल लाहौरिये खुशी से झूम उठे हैं। पंजाब हुकूमत के कल्चरल फेस्टिवल की तकरीबात बड़ी आबोताब से जारी हैं। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल जिलानी पार्क और अब अंदरून लाहौर शाही किला में और दिल्ली दरवाजे से लेकर मस्जिद वजीर खान, शाही हमाम, सबील वाली गली और गली सूरजन सिंह में हर तरफ फेस्टिवल की रौनकें अरूज पर हैं। वॉल सिटी ऑफ अथॉरिटी की तरफ से शायकीन के लिए हिस्ट्री बाई नाइट, वेख अंदरून लाहौर, रोशन गलियां और म्यूजिकल सूफी नाइट एंड अदब के नाम से अदबी प्रोग्राम, महफिल समा, हीर गोई और बहुत से इलाकाई सकाफती प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है, जिसको देखकर शायकीन खुशी से मसरूर हो रहे हैं। ये कल्चरल फेस्टिवल अभी एक हफ्ते तक इसी तरह देखने वालों को महजूज करता रहे। अंदरून शहर लाहौर में वाक़ सरकारी अस्पताल सैयद मिठा में मरीजों के लिए अद्वियात और टेस्ट की मुफ्त सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मजीद जानते हैं सैयद आसिफ इलियास की इस रिपोर्ट में। महंगाई के इस दौर में जहां गरीब आवाम के लिए इलाज करवाना मुश्किल, वहीं अंदरून शहर लाहौर में वाक़या सैयद मिठा अस्पताल में आवाम के लिए मुफ्त अद्वियात और टेस्ट वाले आलात, जिसमें सीटी स्कैन मशीन, एक्सरे मशीन, एंजियोग्राफी मशीन, ECG और डेंगू के मरीजों के लिए डेंगू वार्ड मुख्तसिस की गई है। भजन माशाल्लाह बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर भी बड़ी अच्छी केयर करते हैं, स्टाफ जो है नर्सें वगैरह वो बड़ा अच्छा केयर करती हैं। कि अल्लाह का शुक्र है कि हम आते हैं इधर से, घर से पास कोई पैसे नहीं, कोई चीज़ नहीं लगती है हमें, हमारा मुफ्त इलाज हो जाता है, दवाइयाँ भी मिल जाती हैं, अंदर से ड्रिपें भी लग जाती है। टीके 2 दिन हो गए कि मेरे वाल साहब तबीयत ख़राब होती है, मैं लेके आता हूँ और ट्रीटमेंट अच्छा होता है। शुक्र है अल्लाह का, चले जाते हैं वक्ती तौर पर थोड़ा थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाए, एज ज़्यादा है, अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करते हैं। इधर हम काफ़ी अरसे से आ रहे हैं, बहुत अच्छा इलाज होता है, अच्छी तरह डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, इधर सारा अमला बहुत अच्छा है, अच्छा इलाज होता है इधर माशाल्लाह। मरीजों का कहना है कि हमें अद्वियात मुफ्त मुयसर की जा रही हैं और डॉक्टरों का हमारे साथ रवैया बहुत अच्छा है। मरीजों के तीमारदारों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में अगर ऐसे ही इलाज होता रहे तो दुखी इंसानियत की मुश्किलात में कमी होगी। कैमरामैन मोहम्मद चांद के साथ सैयद आसिफ इलियास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला न थम सका। PTI के साबिक MPA सैयद मखदूम इफ्तिखार हसन गिलानी ने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अजमल जट की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला ना थम सका। PTI के साबिक MPA सैयद मखदूम इफ्तिखार हसन गिलानी ने भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सरबरा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जंगीर तरीन और सदर IPP अब्दुल अलीम खान की उच्च शरीफ आमद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरबरा IPP जंगीर तरीन का कहना था कि आम इंतखाबात में तमाम पार्टियों को हिस्सा लेना चाहिए। 9 मई का वाकया इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। मैंने और अब्दुल अलीम खान ने PTI के लिए बहुत मेहनत की, मगर हमें मायूसी का सामना करना पड़ा और हमने अलहदगी इख्तियार कर ली। इनका मजीद ये भी कहना था कि अगर मेरे अल्लाह ने मुझे आवाम की खिदमत का मौका दिया तो इस मुल्क में ऐसा वाकया कभी रूनुमा नहीं होगा। जबकि दूसरी जानब सदर IPP अब्दुल अलीम का कहना था कि मुझे पनामा केस में नाजायज तौर पर नाअहल किया गया। अब 5 साल की मुद्दत के बाद नवाज शरीफ के साथ ही मेरी नाअहली भी खत्म हो गई। आम इंतखाबात अब 8 फरवरी को मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशियत का है। मुल्क में मईशियत के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से न सिर्फ आवाम की खिदमत करेंगे बल्कि पाकिस्तान को अंधेरों से निकालकर तरक्की की राहों पर। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट चूंग का डकैत व रोबर गैंग्स के खिलाफ घेरा तंग। ऑर्गेनाइज्ड डकैती चूंग की कार्रवाई, 3 रुकनी डकैत व रोबर गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान का सरगना वजीर और वजीरी राशिद सदीक और शबीर भी गिरफ्तार कर लिए गए। कार्रवाई के दौरान मुलजमान से लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता डकैती और रॉबरी जैसी मुतादिद वारदातों में मतलूब थे। मुलजमान पोश इलाके में गन पॉइंट पर डकैती और रॉबरी की वारदातें करके लोगों का कीमती माल लूट कर फरार हो जाते थे। मुलजमान को पेशा वराना सलाहियतों, जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुएकार लाते हुए और पब्लिक रिलेशनशिप की मदद से गिरफ्तार किया गया। SP साउथ आफ्ताब अहमद फुलरवान की तरफ से DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट चूंग फारूक अवान और उनकी टीम को शाबाश और तारीफी सर्टिफिकेट भी दिए गए।
लाहौर के इलाके शादबाग में डकैती की वारदातें, डाकू नाका लगाकर शहरियों को गन पॉइंट पर लूटते रहे। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसमें वाज़ेह देखा जा सकता है कि डाकू वारदात के दौरान शहरियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। देखें, लाहौर शहर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर डाकू नाके लगाकर वारदात करते हैं, जिस तरह से लारी अड्डा, इसके अलावा शादबाग और दीगर थानों की हदूद में जो है वो डाकू नाके लगाए जाते हैं और बाकायदा लोगों को गन पॉइंट पर लूटा जाता है। शादबाग का ये इलाका है जहां पर देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर दो डाकू जो है वो गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल सवारों को रोकते हैं और हफड़ा तफड़ी में डकैती की वारदात करते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं इनमें से जिनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। डाकू ने गन पॉइंट पर उनकी गर्दनों पे थप्पड़ मार रहे हैं और कह रहे हैं जल्दी से पैसे और मोबाइल फोन निकालो, उनके साथ डकैती की वारदात कर रहे हैं। तकरीबन 3 वारदातें जो है वो ये डाकू कर चुके हैं और ये हटे कटे डाकू जो कि लाहौर की सड़कों पर डकैती की वारदात करते हैं, पुलिस की आंखों से अभी तक ताहाल ये ओझल हैं। देखा जाए तो सीआईए कोतवाली पुलिस भी बिल्कुल इनके करीब है, क्योंकि सीआईए कोतवाली जो है वो शादबाग से 10 मिनट की दूरी पर रास्ता है। सीआईए कोतवाली के जवान भी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा तौर पर सफेद पार चार्ट में आउट होते हैं। लेकिन ऐसे जो डाकू होते हैं जो दिन दिहाड़े दीदा दिलेरी के साथ वारदात करते हैं, ना सिर्फ ये वारदात करते हैं, ये पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी करते हैं और जवाबी फायरिंग में जब ये मारे जाते हैं तो इनके अहले खाना जो है वो चीख कर चलाते हैं कि पुलिस ने हमारे बच्चे को बेगुनाह कत्ल कर दिया। ये वही लोग हैं जो कि डकैती की वारदात कर रहे हैं। इनकी माएँ, इनकी बहनें, इनके खानदान के जो लोग हैं वो पुलिस के साथ गिले शिकवे करते भी दिखाई देते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे नौजवान पुलिस की गोली का निशाना बने, अपने साथियों की गोलियों का निशाना बने और उन्होंने बाकायदा तौर पर चीख कर कहा हमारे बच्चों को नाहक कत्ल कर दिया है। शादबाग और गुजरपुरा का इलाका एक साथ बाउंड्री लगती है और वहां पर पिछले दिनों जो है वो कार सवार ने फायरिंग करके 2 डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया था। तो इसी तरह से उन्होंने एक जुलूस भी निकाला था, हमारे बच्चों को नाहक कत्ल किया गया है, बल्कि उनके ऊपर 50-50 मुकदमात भी थे डकैती के। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच ने फलस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती करते हुए आज मंसूरा लाहौर में इजलास तलब किया है। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की रिपोर्ट में। कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि जमात इस्लामी फलस्तीन का मुकदमा भरपूर तरीके से आगे बढ़ाने का मिशन जारी रखेगी। इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों की अवलीन जिम्मेदारी है कि वो गजा में इसराइल कत्लेआम रुकवाएं। मंसूरा में मरकजी कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि जमात इस्लामी मुल्क भर में अवाम को फलस्तीन मसले पर मोबिलाइज कर रही है। इजलास में लाहौर में 19 नवंबर को होने वाले गजा मार्च की तैयारियों के हवाले से मुशावरत की गई। इजलास में सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीर नजीम, सेक्रेटरी इतलात कैसर शरीफ, अमीर जमात इस्लामी पंजाब वस्ती जावेद कसूरी, अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी, एडवोकेट व दीगर भी शरीक थे। लियाकत बलोच ने इंतजामात से मुतल्लक मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी और हदायत जारी की कि गजा मार्च को हर हवाले से तारीखी इज्तिमा बनाना है। इन्होंने कहा कि मसला फलस्तीन इस वक्त पूरी दुनिया का अहम तरीन मसला बन चुका है। अमरीका की इसराइल को मुसलसल हमायत आलमी बरादरी को चैलेंज से मुतरादिफ है। इसराइल को अमरीकी पुष्टपनाही मिलती रही तो जंग के शोले फैल सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस और दीगर आलमी इदारे अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करें और गजा में जंग बंदी करवाएं। पूरी उम्मत इस वक्त बेचैन और मुस्तरब है। जुल्म को नसीराबाद के इलाका में 2 बत्ताखोर पुलिस ने धर लिए। मुलजमान ने शहरियों से भत्ता लेने के लिए खत लिखा और उसमें रकम न देने की सूरत में कत्ल की धमकियां दी गई। एसएचओ नसीराबाद इशफाक खान ने मुलजमान को किस तरह से गिरफ्तार किया, आइए उनकी अपनी जुबानी जान लेते हैं। मेरा नाम इशफाक खान है और मैं बतौर एसएचओ पुलिस स्टेशन नसीराबाद लाहौर में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। चंद दिन पहले हमें एक इत्तला मिली कि नामालूम ने एक गुलबर्ग थी में एक नज़ीर साहब हैं, उनकी रिहाइश पे जो है वो तथ्य के लिए एक लेटर जो है वो फेंका है और उसकी तहरीर के मुताबिक उनसे भत्ता तलब किया गया और रकम ना देने की सूरत में जान से मारने की धमकियाँ दी गई और मखसूस जगह पे जो है वो रकम पहुंचाने का मुतालबा किया गया। जिस पे जब ये पुलिस के नोटिस में बात आई तो हमने इस पर वर्क स्टार्ट किया और हमने सीसीटीवी से मदद ली। उस पर हमने जो है वो 3-4 जगहों से सीसीटीवी फुटेज चेक की। फिर हमने सेफ सिटी अथॉरिटी से मदद ली, वहाँ भी गए हम
तो सबसे पहला क्लू जो है वो हमें एक वीडियो से मिला जिसमें एक मखसूस हुलिये की बाइक थी जिसके नंबर प्लेट तो नहीं थी, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो बिल्कुल डिफरेंट थीं, जैसे बैक लाइट टूटी हुई थी और बैक साइड का मडगार्ड जो है और सेंसर्स को रेड कलर हुआ था, और पीछे जो शख्स बैठा हुआ था उसके शूज़ बड़े डिफरेंट थे। तो उस पर हमने वर्क किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। वो शूज़ की मदद से ही हमने पहला जो सस्पेक्ट है उसको ट्रेस किया, और फर्दर फिर जो है वो दूसरा सस्पेक्ट जो है उसकी मदद से हमने गिरफ़्तार किया। मोटरसाइकिल जो है वो भी क्लियर हो गई जो इस्तेमाल हुई थी सूर्य के मुताबिक, और हेलमेट और बाकी सारी चीज़ें। और बवक्त गिरफ़्तारी जो है वो उस शख्स के जेब से जमा तलाशी के दौरान दूसरा लेटर भी बरामद हो गया जो उसने अभी फेंकना था उनके घर, क्योंकि उन्होंने रकम अदा नहीं की थी। वो भी एक धमकी आमेज लेटर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कदम ब कदम हमें सीनियर्स की जो है वो गाइडेंस। लाहौर में रहनुमा मुस्लिम लीग नून सदर पाकिस्तान मजदा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हाजी शेर अली चौधरी की साहबजादी हाफिजा मलाइका और मोहम्मद अवैस रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। लाहौर के निजी होटल में बारात की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। राना फारूक सईद सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब मारूफ ट्रांसपोर्टर, बजाज खान न्याजी साबिका वजीर तालीम, राना मशहूद साबिका MPA मेहर इश्तियाक, SP ट्रैफिक सदर मलिक अकराम, SP ट्रैफिक सिटी शहजाद खान, पाकिस्तान मजदा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी तनवीर अहमद जट, मरकजी सीनियर नायब सदर मलिक मोहम्मद एजाज बानी, राना तारिक मुश्ताक मलिक, मोहम्मद मारूफ, हाजी परवेज अवान नजीर अहमद डोगर व दीगर सियासी और समाजी शख्सियात समेत रिश्तेदारों और अजीजों अकारिब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमानों ने नौब्याहते जोड़े के लिए नेक दिली तमन्नाओं का इजहार भी किया। जी बहुत शुक्रिया। आज मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ जो सुन्नत नबवी है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे तमाम अजीज़ों कार मेरे साथ खड़े हैं, जिसमें बजाज न्याजी खान साहब मेरे भाई हैं, वो भी तशरीफ़ लाए हैं। राना फारूक साहब मेरे समुद्री से मिनिस्टर हैं, वो भी तशरीफ़ लाए हैं। उस साथ तमाम दोस्त सियासी समाजी अक्सर क़यादत के लोग भी बैठे हैं, कुछ मीडिया के दोस्त बैठे हैं। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे इवेंट में तशरीफ़ ला के रौनक दुबाला की। शेर हमारे बड़े भाई हैं जी, हमारी भतीजी की शादी है, हमारी बेटी की शादी है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। दोस्त बाप आए हुए हैं, बरादरी शेर भाई की इकट्ठी हुई है, आप सब दोस्त आए हैं, राना फारूक साहब भी आए हैं और भी काफ़ी अच्छे दोस्त आए हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला नेक तमन्ना करते हैं अपनी बेटी के लिए, अल्लाह ताला उनके लिए अच्छा नसीब करे, अल्लाह ताला बरकत डाले, अल्लाह ताला शादी के बाद भी अच्छा कारोबारी जो भी। पंजाब फूड अथॉरिटी का सर्दियों की सौगात फ्राइड फिश पॉइंट्स की चेकिंग जारी है। 860 फ्राइड फिश पॉइंट्स को चेक किया गया। नाकिस इंतजामात पर 187 पॉइंट्स को जुर्माने भी किए गए। वार्निंग का नोटिस भी जारी किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी का सर्दियों की सौगात फ्राइड फिश पॉइंट को चेकिंग का आगाज। फूड सेफ्टी टीमों का सूबा भर में मछली पॉइंट पर अचानक छापे। 860 फ्राइड फिश पॉइंट की चेकिंग। नाकस इंतजामात पर 187 पॉइंट को जुर्माने आयद। 400 लीटर से ज्यादा इस्तेमाल शुदा ऑयल, 1 मन बदबूदार मछली तलफ। 644 फिश पॉइंट को मजीद बेहतरी के लिए इस्लाही नोटिस। लाहौर डिवीजन में 177, फैसलाबाद में 92, साहिवाल में 80, रावलपिंडी में 64 फिश पॉइंट को चेक किया गया। गुजरांवाला में 125, सरगोदा में 113, बहावलपुर में 65, मुल्तान में 68, डीजी खाम में 76 फिश पॉइंट को मुआयना किया गया। गैर मयारी ऑयल इस्तेमाल और सफाई के नाकस इंतजामात पर जुर्माने आयद किए गए। मयारी ऑयल को फ्राइड के लिए एक दफा इस्तेमाल करें। ऑयल तब्दील किए बगैर बार फ्राइड करना खुराक को मुजरे सेहत बना देता है। रिजेंट ऑयल का इस्तेमाल मोजी बीमारियों का बाइस बन सकता है। फिश फ्राइड पॉइंट पंजाब फूड अथॉरिटी के कवानीन पर अमल दरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत का पाकिस्तान के नौजवानों के लिए अहम पैगाम। कहते हैं अच्छी तालीम हासिल करके पाकिस्तान पुलिस का हिस्सा बने और लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। मजीद उनका क्या कहना था, आइए उनकी जुबानी जान लेते हैं। मेरा नाम जाहिद नवाज मरवत है। मैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत से ताल्लुक़ रखता हूँ। इब्तिदाई तालीम अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने गाँव से और फिर
मास्टर की तालीम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हासिल की। 2007 में सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान का इम्तिहान पास किया और 2009 में इस ASP अपने ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। सर्विस के दौरान मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में ASP, देन SP और फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के तौर पर काम किया। मुझे खुशी है कि मैं इस पुलिस ऑफिसर लोगों की जिंदगियों में आसानियां तकसीम करने का बाइस हूँ। मैं अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर मेहनत की और मैं उन तमाम वालिदैन से यही कहूँगा कि अपने बच्चों पर मेहनत करें, पुलिस ऑफिसर बने और लोगों की जिंदगियों में आसानियां तकसीम करें। मैं अपने तमाम इन सीनियर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी कैरेक्टर बिल्डिंग की और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी। आप भी मेहनत करें और अच्छे पुलिस अफसर बने। थैंक यू। मेरा नाम इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज को।